Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Namaskar, Adab, Sat Sri Akal. Hello everyone and welcome to Beyond the Classroom session brought to you by Testbook. Now this is the first time in Ekagrat when we will be talking directly to our students and discuss things that are not taught in the classroom. मैं सनदत भारद्वाज पिछले 10 साल से इस फील्ड के अंदर स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को के एस्पिरेंट्स को स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूं, मेंटर कर रहा हूं, एंड सो मेनी स्टूडेंट्स दे हैव बीन सक्सेसफुल इन दिस फील्ड and not just in civil services and various other examinations as well, state civil services, judicial services. I have had a brief stint of my life given to this field. Now इस सेशन के अंदर as a mentor, as a guide to all these aspirants, मैं इन एस्पिरेंट्स से कुछ बातें करना चाहूंगा, कुछ रूबरू होंगे हम, इनके डाउट्स को कुछ क्लैरिफिकेशन देंगे, कुछ इनके मन में जो इच्छाएं हैं, जो मन में थॉट्स आते हैं फॉर एन एस्पिरेंट कि किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, व्हाट इज द रीजन कि कोई सिविल सर्विसेज को चूज करे, व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस दैट अ टीचर वुड फेस और अ गाइड वुड फेस, इन सभी प्रकार के डाउट्स को क्लैरिफाई करेंगे in this beyond the classroom session. Now आज हमारे साथ हमारे ही लाइव लर्निंग क्लासेस के सेशंस के 3 छात्र हैं. आप लोग प्लीज एक एक करके अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए. वैभवी, आपसे शुरू करते हैं. Hello. जी, we can hear you. Myself Vaibhavi Dhananjay Mashelkar. I am 23 years old and I have completed my graduation in accounting and finance, and I have completed my post graduation in advanced accountancy. Great. Aryan. Hello everyone. My name is Aryan Goswami. I am from Himachal Pradesh. I am 18 years old and I am in second year BA. I am doing BA graduation, BA in Sociology. Great. राहुल, अपने बारे में थोड़ा बताइए. Myself Rahul from Bihar. I am 26 years old. I am ex-serviceman in Bank PO. Right. I am very grateful. That's wonderful. To be interacted with you, sir. Great. We are very grateful to be connected with you on the platform like Textbook. The pleasure is all mine, Rahul. The pleasure is all mine. तो बिना और टाइम वेस्ट किए, let's move forward and move directly to the discussion that we are supposed to do. I'll ask a couple of questions and you can ask me whatever you want to know or learn through this session. So मेरे कुछ सवाल हैं आपसे, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि एक एस्पिरेंट के मन में ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन पीरियड क्या क्या चल रहा होता है. सो वैभवी जी, पहले आपसे मैं पूछना चाहूंगा, why and when did you choose to be an IAS aspirant for UPSC aspirant? And what was the motivation behind this? What was what is your future goal for that matter? ये फील्ड आपने चूज क्यों की? सर, मैंने 11th-12th में ही सोचा था कि मैं यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करूंगी और मेरा मतलब गोल, मतलब मुझे यही क्यों करना है, बिकॉज जो लड़कियों के अगेंस्ट जो वायलेंस होता है, जो उनके साथ गलत होता है, ये कभी तो स्टॉप होना चाहिए. मतलब उनके लिए मुझे कुछ करना है, तो इसके लिए मैं सिविल सर्विसेज में आना चाहती हूँ. ग्रेट, वंडरफुल, वंडरफुल. एंड फ्यूचर में हाउ डू यू थिंक दैट यू विल बी यूजफुल? आप कैसे सोच रहे हैं कि आप किस तरीके से इस चेंज को लाना चाहेंगे? आपने कोई एक स्पेसिफिक सर्विस चूज की हुई है मन में? एक आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, कुछ ऐसा सोचा हुआ है? आईएएस. ग्रेट, वंडरफुल. Aryan, my next question would be to you. आपका कोई ऑफलाइन कोचिंग का एक्सपीरियंस रहा है? आप में से किसी का भी ऑफलाइन कोचिंग का एक्सपीरियंस रहा है अभी तक? No sir, this is my first coaching that's I am taking online after the school and in the second year. But I think that जब सर हमें जब ऑनलाइन हमें इतनी फैसिलिटीज मिल रही है, तो फिर ऑफलाइन में इससे अच्छा तो घर में बैठे ही हम ऑनलाइन ही स्टडी करें और इंटरेक्टिव टीचर्स मिलेंगे, इंटरेक्टिव स्टूडेंट्स साथ में मिलेंगे, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. सर फिर ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर.
Rahul, have you ever had any offline experience in coaching? Yes, sir. I have done few months classes of UPSC Okay, quality classes. right. But there is issue, sir. Okay, There is lot of students in the classes, and they right, are not able to ask questions with their faculties. right. So one-on-one interaction नहीं रहता है basically. Yes, sir. Right, right. But here on this platform, we can ask or interact with you individually and also on the Right. platform. Even I try to make my classes interactive. आपने you might have seen in public administration as well. I try to cheer people up. Even as teachers, guys, ऐसा रहता है कि जब हम students के साथ interaction करते हैं, what we see is like a live chat section, right? We are only seeing the presentation our own self, but when we see your interaction with us, when we see you guys participating, so it gives us motivation to perform well, and it also pushes us to bring about certain certain new ideas and discuss certain new challenges with regard to Indian society and related matters. तो ये कई बार आपकी तरफ से भी होता है, कई बार हमारी तरफ से भी होता है. So for example, जैसे आपको टीचर्स इंटरैक्टिव अच्छे लगते हैं, हमें भी स्टूडेंट्स जो इंटरैक्टिव होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं. Some students who laugh at teachers jokes, right? हम स्कूल में कॉलेज में जैसे ये बात करते होते थे, चर्चा करते होते थे, तो हम कहते थे कि लाइक अ टीचर्स पेट. बट आज की डेट में ऑनलाइन एजुकेशन में आई फील लाइक यू हैव टू इंटरेक्ट विद द टीचर सो दैट टीचर को भी ये महसूस होता रहे कि हाँ बच्चे सुन रहे हैं भाई, राइट? अच्छा, Sir, apart, one more advantage is that जैसे sir, if we are having fever or we are ill, so we can take classes. We have right, neither to go yes. anywhere, and in bed rest we can take classes. We have this advantage. अच्छा, एक ना एक मेरी लाइफ में ये चीज जरूर रही है. व्हेन आई एंटर्ड दिस फील्ड ऑफ सिविल सर्विसेज, माय फादर, माय मदर एंड पर्टिकुलरली सर्टेन रिलेटिव्स, कुछ लोगों ने पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला, कुछ लोगों ने नेगेटिव इम्पैक्ट डाला. नाउ राहुल, हैज देयर बीन any role of your family or friends or relatives to push you into this field of civil services? Positive Yes, or negative? no, sir, positive impact. Right. My brothers are very helpful, and they are trying to push up me each and every time. I have quitted my job. They Yes. they supported me. They don't tell me that you have no potential of being an IAS officer. Right. The thing is that guys, I'll tell you what, हम हमेशा we see society in a very different way. Every human being is like completely differently designed. So what I have perceived is, देखो आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे कि आप ये चीज कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे कि तू ये काम कर ही नहीं सकता, राइट? यू कैन नॉट डू दिस, इट इज वेरी डिफिकल्ट, या वो ये बोल देंगे कि ये टास्क ही इम्पॉसिबल है, लाइक इट इज हाईली इम्प्रॉबेबल टू बिकम अ सिविल सर्वेंट. You'll find two kinds of people in this world, right? And both of these individuals, you'll have to understand that कि आपको जिंदगी में कुछ एक तस्दीक करके जा रहे हैं, कुछ एक लेसन प्रोवाइड करके जा रहे हैं. दैट लेसन इज that even if they were not able to do it, or even if they are fearful of this particular event or this particular target, it is not that you cannot do it. You understand what I'm saying? So life में ना आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे even during this preparation phase. अभी जैसे हमारा 1 साल के आसपास का डिटेल्ड कोर्स चल रहा है, उसमें भी आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको कहेंगे yes you can do this. बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि नहीं हो सकता यार, बहुत मुश्किल है यार, राइट? इन दोनों तरह के लोगों को आपको बैलेंस आउट करके चलना पड़ेगा. जैसे दो नेगेटिव्स पॉजिटिव बना देते हैं ना, सो आपको उस नेगेटिव ओपिनियन को भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके अपने लिए पॉजिटिव करना होगा. सो यू विल हैव टू फाइंड विद इन योरसेल्फ दैट करेज कि अगर ये बोल रहे हैं कि नहीं हो सकता, फिर तो मुझे करके ही दिखाना. So I've had students, I receive so many phone calls when I take up mentoring sessions for students. तो ऐसे फोन कॉल्स आते हैं जो बच्चे ये कहते हैं कि सर मुझे मेरे रिलेटिव्स कहते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकती है. आई बिलोंग टू दिस रीजन इन पंजाब ना, तो वहाँ पे कुछ ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम लॉ बैकग्राउंड. दे आस्क मी सर मुझे ये बोल दिया कि तू कुछ नहीं कर सकती है, इतना है होता है, या तू कुछ नहीं कर सकता है, इट कैन नॉट बी डन, ये पॉसिबल नहीं है. So all of these students, and to find motivation out of this negative
कह लीजिए इमोशन जो लोग आपके लिए रख सकते हैं, आपको एक ही चीज याद रखनी होगी कि जो ये रास्ता जितना भी कड़वा होगा उसका फल जो है उतना ही मीठा होगा। तो ये अच्छा है कि रास्ता कड़वा है क्योंकि फल उतना ही मीठा हो। देन यू वुड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सक्सेस इन दिस फील्ड। जिसको आसानी से मिल जाएगा शायद उसको नहीं, लेकिन जब आपको लोग मोटिवेट और डिमोटिवेट दोनों करने वाले होंगे लाइफ में, यू विल फाइंड सो मेनी पीपल, तो आपको इस सक्सेस की असली वैल्यू पता चलेगी। ऑलराइट, चलो Sir, I नाउ am वैभवी, जी 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 राहुल। sir, I am very grateful to Textbook. Through this platform, we all are connected with you, and you motivated us a lot of things. We are very cheerful. Rahul, Rahul, you praise me and I get shy about it. मेरे को शर्म आने लगती है, पता नहीं क्यों। मैं probably because I'm a bit introvert about it. The thing is that बाकी Traditionally, आपकी समोसा पार्टी इस लेक्चर के बाद, अपने इस सेशन के बाद पक्का है। ट्रेडिशनली जो चीजें हैं ना, वो यूपीएससी की प्रिपरेशन को लोग बहुत हेक्टिक मानते हैं, लेकिन जी आपने ना सर अपनी क्लासेस में इतनी इंटरटेनिंग के साथ तो आपने ऑप्शनल भी पेपर पढ़ाए हैं हमें, ठीक है। जी और सर इतनी इंटरेक्टिव क्लासेस ऑफलाइन हमने आज तक तो देखी नहीं है। लोग बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं क्लासेस के बाद। जी जी। वी आर एंजॉयिंग योर क्लासेस सर। Rahul, the thing is that I have been through the phase that you are going through. सर ट्रेडिशनली जो होती है, ये यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है स्टडी की, और जो हमारी सफर होती है, वो एक बहुत हेक्टिक टास्क हो जाती है हमारे लिए। Right. और टेक्स्ट बुक के थ्रू आपने उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाया सर। हंसने गाने का Thank you, मौका मिल Rahul. जाता है हमें। Right. और इवन सर जो हमारी लेट नाइट क्लासेस होती है, हमें तो सर स्लीपीनेस का फीलिंग भी आने लगता था, लेकिन आपने जब जो क्रैक करते थे क्लासेस के बीच में, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा सा फीलिंग देता था, और हम थोड़ा और भी ना वो जोश से भर जाते थे, गूज बम्स सा होता था हमारे, कि हम देर रात तक पढ़ Right. पाते थे। राहुल, द थिंग इज के टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, बात दरअसल ये है कि क्योंकि हम उस फील्ड से, उस दौर से गुजरे हुए हैं, तो मुझे पता है। मैं मैं आपको बताता हूँ, मैं रात रात भर जाकर पढ़ाई करता होता। एंड समटाइम्स मैं क्या करता था कि मुझे जब जैसे करंट अफेयर्स फॉलो करने होते थे, महीने महीने के करंट अफेयर्स कवर करने हैं, या जैसे मुझे चीजें सिर्फ सर्च करनी है फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट्स एक्सेट्रा, तो मैं अपने कानों में ईयरफोन्स लगाकर आधी रात को 12 बजे के बाद, मैं आपको बताता हूँ 11:30 12 बजे के बाद एक ऐसा समय आता है जहां पर कुत्ते भी शांत हो जाते हैं गली के। तो उस टाइम पे मैं पढ़ता होता था, तो मुझे रियलाइज होता था कि शायद इससे बेहतर एफिशिएंसी नहीं आएगी। और मैंने दोनों टाइम पे काम किया हुआ है, मैंने लेट नाइट्स और अर्ली मॉर्निंग दोनों पे ही काम किया हुआ है। तो इस बारे में भी चर्चा करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ सवालात जो हैं वो मेरी तरफ से भी हैं, कुछ आप भी पूछ सकते हैं, नो डाउट। मेरा एक सवाल और है आप सबसे, बिकॉज ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता कि वैभवी जी, हाउ डू यू रिलैक्स? आप कैसे रिलैक्स होते हैं? आप हॉबीज को फॉलो करते हैं, कोई आप अपने पैशंस को फॉलो करते हैं, कुछ ऐसा जो आप अपने माइंड को बिजी रखने के लिए करते हैं? सर अगर मतलब बीच में बोर वगैरह हो जाती हूँ तो कभी गाना वगैरह सुन लेती हूँ। राइट। कोई फेवरेट सिंगर किसी का नाम आप लेना चाहते हैं? नहीं, ऐसा फेवरेट तो नहीं, मतलब राइट। जो अच्छा लगता है गाना वो सुन लेती हूँ। पुराने पुराने नए कोई? नए, हाँ, दोनों? कोई भी। रीजनल हाँ, मराठी? मराठी भी, हाँ, मराठी भी सुनती हूँ। राइट, ग्रेट। Me for one, I really love learning different languages. मैंने ज्यादा सीखी नहीं, बट कुछ कुछ वर्ड सीख के ना, थोड़ा जिसको कहते हैं कि बड़ा अंदर से फीलिंग आती है, अच्छी फीलिंग आती है। पंजाबी, हिंदी, संस्कृत, ये कुछ लैंग्वेजेस हैं। फ्रेंच थोड़ी सी सीखी थी, और उसके अलावा जर्मन लैंग्वेज में हाथ ट्राई किया थोड़ा। तो जैसे these are certain things I feel कि एक आईएएस एस्पिरेंट की लाइफ में ना ऐसी चीजें होती हैं। आपको भी कुछ चीजें नई ऐसी सीखने को मिलेंगी। फॉर एग्जांपल, राहुल, यू आर फ्रॉम जैसे कॉमर्स बैकग्राउंड एंड बीए कर नो रहे हैं सर, आई आप एम नॉट एडमिन, फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। और यू आर नहीं, एज इन यू आर फ्रॉम बैंकिंग बैकग्राउंड बेसिकली, सो बैंकिंग, कॉमर्स एंड फाइनेंस बैकग्राउंड। सो व्हाट बेसिकली लाइफ में हमें
अपनी फील्ड के अलावा, जैसे आई विल से आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, वैसे आई हैव डन लॉ, बट इंजीनियरिंग की है तो मैं हमेशा इंजीनियर के तौर पे, आपने नोटिस भी किया होगा, ईआर लगा के रखता हूँ मैं। बेसिकली द थिंग इज दैट we tend to have that feeling कि हम कहीं और चीजों में हाथ डालने की कोशिश करते हैं। एज एन आईएएस एस्पिरेंट ना, आपको ये महसूस होगा ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, आपको ये रियलाइज होगा कि हम बहुत सारी चीजें कर रहे होंगे एक साथ। आप पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी वगैरह तो सारी चीजें एक साथ करते ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी लाइफ के अंदर आपको रियलाइज होगा कि ये जब सारे सब्जेक्ट्स एक साथ आप पढ़ते हैं, तो एक माइंड की ना, जिसको कहते हैं फैकल्टीज, मेंटल फैकल्टीज, कॉग्निटिव फैकल्टीज जो है वो डेवलप होनी शुरू होती है। तो आपको आर्ट के अंदर इंटरेस्ट आना शुरू होगा अगर आप अलग तरीके से चीजों को देखना शुरू करते हैं। जैसे वैभवी जी कह रहे हैं दैट शी लाइक्स टू लिसन टू म्यूजिक, तो मैं अगर आपको बोलूं तो आई वाज वेरी मच इनटू म्यूजिक। इनफैक्ट आई यूज्ड टू सिंग, आई यूज्ड टू, अभी तो क्या कि टाइम ही नहीं मिलता है, और लेक्चर्स बोल बोल के, गा गा के गले का बैंड बज जाता है। बट अदरवाइज आई यूज्ड टू सिंग अ लॉट, आई यूज्ड टू स्पेंड एटलीस्ट 1 odd hours डूइंग डेली हाउस होल्ड वर्क। वो मेरे माइंड को रिलैक्स करता होता था। मैं आपको एक सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ कि हमें ना जैसे हॉबीज और पैशंस के लिए जब समय नहीं लगता है, तो माइंड को, जैसे वो हायर पिच पे जैसे चला जाता है ना, उसको वापस लाने का ये यही तरीका होता है कि व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं कपड़े जैसे सुखाता होता था, तय करता होता था, उनको जगह पे रखता होता था। आई यूज्ड टू फॉलो पर्टिकुलर रेजिमेंट, मतलब ऐसा होता था कि अगर टी शर्ट तय करनी है तो प्रॉपर वो तय होती थी, इतने अच्छे तरीके से होती थी कि प्रेस करने की जरूरत ना पड़े। तो वो चीज फॉलो करता था, एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस मैं कभी अरिजीत सिंह, कभी आतिफ असलम, कभी सोनू निगम, इस तरीके के सिंगर्स, मेरा थोड़ा प्रोसेस इस तरीके का था, तो मैं आई यूज्ड टू फॉलो दैट। नाउ हैज एनी वन ऑफ यू फेल्ट के कभी लाइफ में, जैसे आप रास्ता भटकते हैं, कभी कुछ होता है, तो कभी यूपीएससी की इस एस्पिरेशन, एक एस्पिरेंट की लाइफ के अंदर, इन एस्पिरेशंस के दौरान, हैव यू एवर फेल्ट कि नहीं यार, तैयारी जो है वो साइड ट्रैक हो गई है, कभी यू फेल्ट कि यू हैव बीन आउट ऑफ ट्रैक, एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस व्हाट डिड यू डू टू गेट योरसेल्फ बैक ऑन ट्रैक? आपने खुद को वापस से कैसे अलाइन किया? एनीवन? Yes, sir. I am जी already राहुल। serving in public service. जी जी। सो व्हाट हैव यू Are you फेल्ट hearing me? राहुल? हाँ जी, हाँ जी, आई यू आर ऑडिबल। Okay. I have already serviced in bank, public sector bank. I जी felt that it is not the bad sector, but there you can't serve public in that way, that in a way that UPSC candidate can serve. राइट। They have more knowledge about the society, how to develop their living styles, their education, what are the grievances they are suffering from. ओके। एंड हैव यू एवर फेल्ट राहुल, आपको कभी ऐसा लगा कि तैयारी जो है वो रास्ता भटक गई, कि मैं जिस राह पर चला था, कि जिस मंजिल को पाने की कोशिश थी मेरी, और वो मंजिल जो है वो उस रास्ते पर मैं नहीं हूँ? Yes, sir, I think so. It may happen in anyone's life. When you are comparing yourself with other one, then it is a very bad thing. जी You are trying to compare yourself that someone is enjoying the life, someone is enjoying the party, है ना? राइट। ऐसी चीजें होते रहती हैं लाइफ में कि आप जब दूसरे को देखोगे वो पार्टीज कर रहे हैं, वो कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, मूवीज तो देख रहे हैं। हाँ मूवीज देख रहे हैं, तो you have to ignore these things राइट राइट। because any UPSC aspirant should be fully focused on their study. ग्रेट। You have to यस enjoy, बिल्कुल। you have to enjoy your books. और राइट। अगर आपके पास अगर सनत सर जैसे अगर फैकल्टीज हों तो आप वाकई पढ़ाई को भी एंजॉय कर पाओगे, क्योंकि ये एक बहुत लंबी सफर है सर। और हमें लगता है कि लोग रास्ते से इसलिए भटक जाते हैं ना, क्योंकि उन्हें अपनी पढ़ाई इंटरटेनिंग नहीं लगती, वो बिल्कुल। कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश नहीं कर पाते अपने सराउंडिंग से चीज़ों को। और आई थिंक सर टू बी इंजीनियर, आप एक इंजीनियर और जी आप हमें कुछ आर्ट्स के भी पेपर पढ़ा रहे हो,
तो हमें लगता है सर आप जो कनेक्टिविटी करते हो ना, उतनी बेस्ट कनेक्टिविटी एक टेक्निकल स्टूडेंट ही कर पाएंगे, आई थिंक सो, जी जी बिकॉज आई एम आल्सो फ्रॉम द कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, दैट इज राइट नॉट इन द ऑप्शन। और अभी मैं सर आरसीबी, हमें तो सर थोड़ी थोड़ी बोरिंग सी लगने लगती है, लेकिन आप जब उसकी कनेक्टिविटी करते हो ना टेक्निकली, तो हमें लगती है नहीं, इन चीज़ों को पढ़नी चाहिए और ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मुझे भी जब राहुल, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। आर्यन, आपसे भी ये सवाल मेरा है, वैभवी जी आपसे भी मैं यही सवाल पूछूंगा भी कि कभी आपको तैयारी में अगर ऐसी परेशानी आई तो आपने क्या किया है। लेकिन उससे पहले मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। नो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन आई वाज व्हेन आई वाज इन दैट लर्निंग फेज, आई सॉ माई सेल्फ सराउंडेड बाय पीपल जो लोग, जैसे कभी, जैसे आपने वेरी राइटली पॉइंटेड आउट राहुल, के जो लोग एंजॉयमेंट ढूंढते थे घूमने फिरने में, चल यार आज मूवी देखने चलते हैं, आज बाहर खाना खाने चलते हैं, ऐसा करने चलते हैं, वैसा करने चलते हैं। लाइफ के पर्सपेक्टिव्स, लाइफ के मायने चेंज होने शुरू हो गए व्हेन आई एंटर्ड इनटू दिस फील्ड ऑफ सिविल सर्विसेज। और इस ये लाइफ के मायने इस तरीके से चेंज होने लगे दैट मुझे चीजें उस मापदंड में मैं अपने आप को मेजर करने लगा कि वुड इट हेल्प माय प्रिपरेशन, वुड इट नॉट हेल्प माय प्रिपरेशन, वुड इट हेल्प माय कॉज। फॉर एग्जांपल, मैंने आप लोगों के साथ जैसे अदरवाइज इन क्लासेस भी जैसे शेयर किया है, माय कॉज इज टुवर्ड्स एजुकेशन, राइट? तो वुड दीज थिंग्स, वुड दे हेल्प माय कॉज ऑफ एजुकेशन और नॉट? क्या ये एजुकेशन को रेवोल्यूशनाइज करने की मदद करेगा, नहीं करेगा? क्या मैं मूवीज देखने जाऊंगा तो ये फायदा होगा, नहीं होगा? क्या मैं ये समय इस तरफ लगाऊंगा तो ये फायदा होगा, नहीं होगा? तो वो हाँ और ना का जो प्लेन एंड सिंपल जवाब आने लगा ना, तो दैट वाज द टाइम व्हेन आई रियलाइज दैट नहीं, अगर अब गलती से, जैसे मैंने मान लीजिए किसी दिन छुट्टी लेकर मैंने एंजॉय करने के लिए मैं घूमने फिरने चला भी गया, तो व्हाट आई वुड फील गिल्टी कि यार नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड देन देयर वाज अ फेज, मैं आप सब लोगों के साथ ये चीज शेयर कर रहा हूँ कि आगे आपको ये फेज आएगा जहां पर आई रियलाइज कि अगर मैं 7 दिन में से 6.5 दिन तैयारी कर रहा हूँ, तो आई शुड गिव माई सेल्फ दैट हाफ डे। तो उससे क्या है कि बैलेंस मेंटेन रहता है। लेकिन एट दिस स्टेज, द स्टेज दैट यू आर एट, आप अगर छुट्टी नहीं भी देते हैं ना तो वो चलता है, बिकॉज लकी फॉर यू, यू नो, वी टेंड टू, हमारे जो टीचर्स थे दे वर नॉट एज, प्रोबेबली उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा नहीं था, बट दे वर नॉट एज इंटरैक्टिव एज एज लकी यू आर, वी वर नॉट एज लकी। So we had to work our way through this process, and thankfully, we are there and we are there to support you as well. Aaron, you are, say, you told us that you are of 18 years of age, very young stage. I know 18 साल की उम्र is a very young and a very bright stage as well. It's like at that mature stage जहाँ पर आपको जिंदगी के मायने समझ में आने शुरू होते हैं। आपने ये फील्ड चूज की। हैव यू एवर फेल्ट कि नहीं, मेरा रास्ता भटक रहा है, नाउ आई वांट टू गेट बैक? कभी आपको ये महसूस हुआ कि कभी दोस्तों के साथ घूमना नहीं हो पा रहा है, मैं सारा सारा दिन पढ़ते रहता हूँ? हैव यू एवर फेल्ट लाइक दैट? Yes, sir. Sir, जैसे sir, I am from combined, means medical and non-medical background. I राइट। have passed my plus two and 11th both in medical and non-medical both. Then I ग्रेट। came to arts. तो ओके। sir, sometimes I feel that कि कहाँ यार साइंस और कहाँ आर्ट्स। Sir, I feel very weird that I come to the means a different a different way. So sir, sometimes क्या होता है कि सर कि जैसे जब मैं आर्ट्स पढ़ूंगा तो सर उसमें हिस्ट्री पॉलिटी एज यू स्टडी and economics. So राइट। sir, at that time I feel some guilty that what I am doing. So I have to mean sir, हमें मुझे अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ता है कि नहीं यार, I have to achieve my goal. So for that I have to sometimes means I have to uh, do and practice some quizzes and question that you give to us. ओके। And textbook, we can see that textbook has organized a pass for quizzes and news, current affairs, GKs. So sir, I maximum time I practice that. राइट। आर्यन,
when I listen to you, जब मैं सुन रहा हूँ मेरे को एक चीज महसूस हो रही है that I need to tell you that whatever you are doing right now, the fruits of this hard work, you will realize in say about 2 to 3 years. And Yes. also, to give you a sense of direction as well, one of my role models, apart from many role models, there is one individual that I really admire. His name is Shrikant Jichkar. You can note it down if you want to. Shrikant Jichkar. He was a Maharashtrian, Vaibhavi ji आपके state से थे, and he recently died. Basically, he was one individual at a very young age, at your age, Aryan. He had qualified for Indian Administrative Services. He had first qualified for Indian Police Services, then he left the job, he entered into Indian Administrative Services. He also served as a foreign diplomat. He had somewhere around 10 to 12 odd master's degrees. He had multiple PhDs. He had covered all the subjects that you can think of. He had pursued bachelor's in engineering. He was an engineer, he was a doctor, he was a doctoral candidate as well. He had pursued multiple PhDs. Now, this guy, whenever I look at him, and he was also a multiple times MLA, he was a multiple times MP as well. So, MP, MLA, yes, sir. IAS, IPS. I don't know if you have heard of this guy or not. He was an Indian, of course, and unka naam tha Shrikant Jichkar. Now, this guy, he was my role model. Even today, the education से related जो मेरा role है या मेरा कह लीजिए जो मेरा goal है, जिस orientation की तरफ मैं जा रहा हूँ या जाना चाह रहा हूँ, I am inspired by this individual. I am inspired by Aurobindo Ghosh. I am inspired by Rabindranath Tagore Sahab. So, आपको before you move on and when you take on these challenges, क्योंकि आप sciences background से हैं, so आपको arts के subjects challenge लगते हैं. But before you go on and take up these challenges, आपको एक चीज realize करनी होगी that at the end of the day, you are supposed to find certain role models and you have to follow that path. So that does not mean you're digressing from civil services. आपको ना जैसे मैं अपने रोल मॉडल की बात बता रहा हूँ आपको, आपको भी शायद हो सकता है आपके फैमिली के अंदर हो सकता है या आपके फ्रेंड सर्कल में किसी जानकार के सामने हो सकता है, या फॉर एग्जांपल जैसे हमारे एकाग्रत इनिशिएटिव में बहुत सारे सीनियर आईएएस ऑफिसर्स आते हैं, तो उनसे हो सकता है इंस्पिरेशन जब आप लेते हैं, सो यू गेट अ सेंस ऑफ डायरेक्शन. जब आपको पता चल जाएगा ना कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ. जैसे छोटे होते थे तो हमें पता नहीं होता था कि राहुल हैज सो मेनी मैंगोज फॉर एग्जांपल, राइट, तो वो इतने मैंगोज का क्या करेगा, हम इतनी कैलकुलेशंस क्यों कर रहे हैं. This is the basic question that everybody asks. Why are we studying maths? Why are we studying economics? Why are we studying, say, for example, polity, history, geography? ये सारे subjects पढ़ क्यों हैं? The reason when you give yourself, for example, कि एक IAS officer को इन सारी चीजों की knowledge होनी चाहिए, because only then वो एक prudent decision ले सकता है, ले सकती है. Imagine a situation जहां पर आपको एक ऐसे एरिया के अंदर नियुक्त कर दिया जाए, आपको अपॉइंट कर दिया जाए, आपकी पोस्टिंग ऐसी जगह पर हो जाए जहां पर आपको उसकी टेरेन के बारे में नहीं पता है, एंड वहां पे आप रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं. आपको उसकी बेसिक ज्योग्राफी पता होगी, बेसिक टेरेन, बेसिक आइडियाज होंगे, उस लैंग्वेज का आइडिया होगा, उसके कल्चर का आइडिया होगा. इट विल बी इजियर फॉर यू टू एडमिनिस्टर दैट लोकेशन. These are the reasons that we study all these subjects. And अभी क्या है कि अभी ये चीजें, because this is like a forward bias approach, और आप हमेशा you connect the dots backwards. So right now all you need to do is find a perfect role model for your goal. एक परफेक्ट रोल मॉडल ढूंढिए और उसको एम्यूलेट, उसके लाइफ प्रोसेस को, उसके थॉट प्रोसेस को एम्यूलेट अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करनी शुरू कर दीजिए. इट कैन बी महात्मा गांधी, इट कैन बी रविंद्रनाथ टैगोर और अरविंदो घोष, इट कैन बी श्रीकांत जितकर फॉर एग्जांपल इन माय केस, राइट. तो आप ढूंढिए उस एक इंडिविजुअल व्यक्ति को, लिविंग और नॉट, इट डजंट रियली मैटर. इवन इफ इज नॉट लिविंग, वो अभी आज जिंदा नहीं भी हैं, तो उनकी ऑटोबायोग्राफीज होती हैं, उनकी बायोग्राफीज होती हैं, वो पढ़िए, उनसे आपको प्रेरणा मिले, तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ, जो हम कर रहे हैं दिस इज लाइक रियली रेलिवेंट, एंड ये आपको आगे चलकर कितनी मदद करने वाला है. इमेजिन कि आप IRS ऑफिसर लगते हैं. I was just today I was in a discussion with a senior IRS officer, and he was talking about the process of administration in revenue department. He was leading the GST team in this region.
तो वो मुझे इस तरीके से बता रहे थे. नाउ आई रियलाइज कि भाई हम जब फिस्कल पॉलिसी पढ़ते हैं, टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये वहां पर जाके मैटर करता है. ये दीज आर लाइक एबीसीडीज ऑफ व्हाट यू वुड डू इन द फ्यूचर, राइट? तो जहां पर आप रीजन ढूंढ लेंगे इन चीजों का, तो आपको रियलाइज होगा. वैभवी जी, आपको कभी ऐसा लगा कि नहीं, मेरी तैयारी जो है वो भटक रही है, आई शुड गेट बैक ऑन ट्रैक? कभी आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि ये इस रास्ते पर नहीं जाना है, ये मुझे तैयारी से दूर ले जाएगा? हाँ हाँ सर, कभी कभी होता है। व्हाट डू यू डू अबाउट इट? सर कभी कभी मतलब ऐसे सब जैसे रास्ते से भटक जाती हूँ, जी. तभी अपना गोल गोल को ही याद करती हूँ अपने, राइट. तो फिर से ट्रैक पे आ जाती हूँ। ये बहुत ही जबरदस्त बात कही है, छोटे शब्दों में. मतलब टीचर्स को तो चलो बात लंबी खींचने की आदत रहती है, बट इन्होंने बहुत छोटे और सटीक शब्दों में एक बात कह दी कि whenever you feel lost, remember, whenever you feel कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, या मैं परेशान हो गया हूँ, तंग हो गया हूँ, ये लंबा रास्ता है, या इट टेक्स टाइम, फॉर एग्जाम्पल, whenever you feel like that, always remember the time when you had started. वो याद करो कि आपने शुरुआत की थी तो क्यों की थी, आप चाहते क्या थे, आज क्या चाहते हैं. सो उससे यू विल गेट बैक ऑन ट्रैक. वंडरफुल रिस्पॉन्स, वैभवी जी. थैंक यू फॉर दैट. नाउ गाइस, these were certain questions that I had I had in my mind. मैं चाहता था कि आपसे पूछूं. अब आपके मन में जो भी सवाल हैं, वैभवी जी आपसे शुरुआत करेंगे. जो भी आपके मन में सवाल हैं, डाउट्स हैं, यू कैन आस्क. यस सर. जी. Sir, when and how did you decide that you want to inspire and teach the UPSC aspirants? Vaibhavi ji, my journey started somewhere around 10 years from today. I still remember the date. It was 29th of August. 29th of August. Year was 2011, 2011. I was in my third year of graduation. Now 29th of August is that day. जिस दिन मेरी placement हुई थी in a company, in a very reputed company. They were sending me to Middle East. I have not shared this story on textbook platform even in my classes, but I want to take this opportunity and share it with you guys. 2011 29 अगस्त, मैं जैसे कि मैंने आपको कहा कि भाई मेरे को 10 साल के आसपास हो रहे हैं, तो दिस इज द रीजन. एंड आफ्टर दैट प्लेसमेंट, इट वाज अ वेरी टीडियस प्रोसेस. मेरा सिलेक्शन भी 500 के करीब बच्चों में से हुआ था. इट वाज नॉट जस्ट माय कॉलेज व्हिच वाज बीइंग कॉल्ड फॉर इंटरव्यूज. 2 लेवल ऑफ रिटन टेस्ट थे, 2 जीडीज थे, 2 इंटरव्यूज थे. तो दो का पड़ाव था, और उसके बाद फाइनली आई वाज द टॉपर ऑफ दैट इंटरव्यू प्रोसेस एज वेल. lucky enough, lucky me for that matter. And we were competing against हमारा भी अच्छा reputed institution था. Our institution was ranked 9th in Asia at that time, chemical engineering के अंदर. फिर उसके बाद मेरे जाने के बाद रैंक नीचे आ गया था, 14th हो गया. Not because I left, but otherwise because of various reasons, some other institutions performed well. Now I was about to be sent to these refineries, जो कि नई बनने वाली new refineries. They were to be set up in Paradip, for example, in Yemen, for example, in Saudi Arabia, in Qatar, various different countries. मुझे Middle East में भी भेज रहे थे, और there were opportunities within India. तो जैसे Paradip असम के पास, और ओडिशा में, sorry, not असम में डिगबोई में, there were certain projects जहां पर मुझे भेजा जा रहा. Now, immediately after the selection process, I went to my father. I told him. He was really happy about it, and because he had his experience in service of the nation, he was selected in OTS back in the day, and उनका army experience था. My family had army background. I never given the physique. मुझे था कि चलो शायद नहीं जाना चाहिए. Otherwise, I had a full mindset कि army में जाना है. I had cracked NDA at my time. So he asked me this pertinent question. Long story short, he asked me कि अच्छा बेटा, अब ये तो हो गया, अब आगे क्या? And I was like, पापा आगे मतलब आगे क्या, मतलब कि आगे क्या करना है? नौकरी लग गई है, काम करेंगे? नहीं, कहते आगे क्या करना है? Like this is something that you have achieved. Then I realized what he was trying to ask. He wanted to know my life goal. मेरी लाइफ का गोल क्या है? एंड आई आस्क्ड हिम कि मुझे एक दिन की मोहलत दीजिए.
and I'll let you know. Within one day, I came back to him and I told him, and the entire family was sitting around. I told him that I want to pursue the field of civil services. Then he asked me that, do you want to become an IAS officer? I told him, नहीं पेपर वगैरह देंगे, लेकिन I don't want to become an IAS officer. What I want, matlab, no disrespect to the field, what I want is to guide people, like to change or revolutionize education as per, so to say. Because he used to tell me, hey, beta, you should pursue civil services, you should go for this, go for that. I realized that I did not find my calling in appearing in the exam. I found my calling in guiding people. So the very next week, I started having discussion forums. I had planned everything. I started calling in students. मेरे पास बच्चे आने शुरू हो गए. 10 के करीब starting में आए. And to be very honest, the notes that I prepared at that point are still relevant. For example, I have never had that feeling कि नहीं इसमें कुछ और add करने की जरूरत है. वहां से जो notes prepare करने मैंने शुरू किए, I realized that this was the right approach. The kick that I get, मतलब जो सलमान भाई किक बोलते हैं ना, वो किक जो मुझे मिलती है, मैं आपको बताता हूँ. जैसे राहुल हैज फेल्ट दिस इन द क्लासेस, you guys must have felt this in the classes as well. The kick that I get is through the process of guiding somebody in a better way, and one better way into a better future. So if I can make somebody's life easier in the future by working hard on them today, that is what inspires me. I want students to grasp what I'm telling them has a deeper meaning. For example, it has multiple senses. You start correlating things when you start following, जैसे ये रिलेशनशिप गोल्स होते हैं ना, आजकल ये चल रहा है इंस्टा विंस्टा के ऊपर, रिलेशनशिप गोल्स ये वो. आई डोंट नो इफ यू फॉलो दैट, यू शुड नॉट. But the thing is that they talk about this is how couples should be. But what I want is, as a mentor, my students should start filling the words that I leave out. जो मैं ब्रेड क्रम्स छोड़ता हूँ, अगर वो ब्रेड क्रम्स को पकड़ के वो उसी थॉट प्रोसेस में चले जाएं जिस थॉट प्रोसेस को मैं डेवलप करना चाहता था. That is why that is the basic thing. Recently, a student of mine, she cracked UPPCS, and she was the topper of that state. Even with her, when I was working with her, even then, I was working on this thing only. अमिताभ बच्चन साहब ना अपने शो के ऊपर एक बात बोलते हैं. अभी तो पता नहीं बोलते नहीं बोलते, बट पीछे एक सीजन में बोला था उन्होंने कि कुछ भी हो जाएगा, लेकिन ज्ञान ही आपको आपका अधिकार दिलाएगा. राइट. सो ज्ञान ही आपको आपका अधिकार दिलाएगा. This was something which was taken from an English proverb. By knowledge we approach God. This was my reason that I chose this field of mentoring students. For me, the level of satisfaction, जब रात को सरहाने पर सिर रखता हूँ, तो आप समझ नहीं सकते हैं कि जब मैं कुछ राहुल knows, you guys know, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जब मैं आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी कुछ एक लेवल पर एक बात बोलता हूँ, तो मुझे एक किक मिलती है, एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है. अलग तरीके से समझाने में या कह लीजिए नई चीज बताने में, वो satisfaction is unmatched. This is the reason that I chose to mentor you guys. And जैसे आज ये सेशन है, तो अब जैसे राहुल ने जो बातें बोली, this was like the most beautiful moment for me in the recent past as far as my journey is concerned. पढ़ाते वक्त ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां बच्चों को रियलाइज होता है कि हाँ, टीचर इज पुटिंग इन एफर्ट्स. जहां बच्चों को रियलाइज होता है दैट यस, दिस इज द राइट वे, एंड दे एक्सपीरियंस इट विद द एग्जाम, एंड दे कंपेयर इट विद व्हाट द टीचर इज टीचिंग. उससे बढ़िया और कुछ नहीं होता. जब आपको रियलाइज होता है यस, व्हाट यू आर डूइंग मेक्स अ डिफरेंस, दैट इज द बेस्ट थिंग, बेस्ट थिंग. Sir, आर्यन. in my opinion, जी 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 sir, in जी my opinion, जी राहुल. I think each and every UPSC aspirant should enjoy in serving someone others from Perfect. where they don't get back anything. Perfect. At first, they have to start this one, then do other things. So what you are trying to say is,
this is something which has happened with me as well. Rahul, I'll share something. For the past 10 odd years, I have also been mentoring students who are from EWS background, for example. And I have, for some, this was like a nominal charge. For some, it was completely free. I've been doing this off and on, and I've been mentoring students. I've been a mentor and, basically a life coach and also a motivator for so many students, including not just civil services, also judicial services. I've been talking about it. I've been guiding them. I've been giving them the perfect strategy, the approach, etc. Every single day, every single day. Even just yesterday before your class, I had a guest at my place who was sent by somebody that even I don't know who sent him. किसने भेजा मुझे नहीं पता है. But उसका सीधे फोन आया, sir, I'm in great distress. I need your help. And I was like, come to me, meet me in my office at 5 o'clock. So this happens on a daily basis. And yes, you are right. As an aspirant as well, आपको ना एक कैरेक्टर मेंटेन करना पड़ेगा, एक कैरेक्टर उठाना पड़ेगा. मैं ये बात बार बार बोलता हूँ क्लासेस के अंदर कि योर प्रेपरेशन विल नीड टू हैव अ कैरेक्टर, और आपका भी एक कैरेक्टर बिल्टअप होगा, आपकी एक पर्सनालिटी बिल्टअप होगी धीरे धीरे करके ना. वंस यू हैव कंप्लीटेड ऑल दी सब्जेक्ट्स, जैसे आरएन यू वर सेइंग के मल्टीपल सब्जेक्ट्स, साइंस के साथ आर्ट्स को पढ़ना और उसको बैलेंस कैसे करना है, व्हेन यू डू दिस ऑन अ डेली बेसिस, आपके ना अंदर से कुछ एक ऐसी एबिलिटीज आएंगी जो आपको लीडर बनने की ओर लेकर जाएंगी धीरे धीरे करके. This is what I want from you guys. I don't want you to be aspirants. I want you to be leaders of your own field. If you want, in my opinion, this is what I want. This is where I would feel कि हाँ, I have given back to the society that it gave me. Any other questions? Aryan? Yes, जी. sir. As you appeared in the UPSC examination, so sir, what you observed changes in the exam pattern or approach in the of the UPSC in the past years? Okay. There is a huge change in civil services, guys. There used to be a time, बड़े बुजुर्ग जब होते थे, हमारे बुजुर्गों के टाइम पे जो यूपीएससी सवाल पूछती थी, पहली चीज तो ये कि जब हम यूपीएससी की बात करें ना, तो अटमोस्ट रिस्पेक्ट के साथ कीजिएगा. जितनी रिस्पेक्ट आप यूपीएससी को देंगे, उतनी ही रिस्पेक्ट आपको यूपीएससी से मिल जाएगी इन द फ्यूचर, एंड गॉड विलिंग मिलनी चाहिए. नाउ द थिंग इज, जब हमारे बुजुर्गों का समय होता था, तो यूपीएससी ना फैक्चुअल सवाल पूछती. आपको मैं बताऊं तो सिंपल फैक्ट्स होते थे, लेकिन वो छुपे हुए होते. समथिंग दैट एसएससी ग्रेड, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी ग्रेड, बट एसएससी लेवल की अगर मैं बात करूं या स्टेट सिविल सर्विसेज लेवल की मैं बात करूं, तो इन सब से छंटने के बाद जो डीपर लेवल आता था, उस लेवल पे यूपीएससी सवाल पूछती. बट टुडे दैट इज नॉट ट्रू. particularly this thing changed somewhere around 2012 2013 2013 के अंदर ये बदलाव आया. This was the first time that UPSC, and after that 2014, first time ever जहां पर UPSC ने कल्चर से रिलेटेड सवाल स्पेसिफिकली पूछने शुरू कर दिए. फिर एक वो समय आया जहां पर एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए. तो 14-15 ऑड क्वेश्चंस फ्रॉम वन पर्टिकुलर टॉपिक, और ऐसा अगले 2-3 साल तक किया. इनफैक्ट 2016 के अंदर भर भर के यूपीएससी ने करंट अफेयर्स पूछे, भर भर के. लेकिन एक कॉमनैलिटी है इन सो फार एज द चेंजिंग पैटर्न इज कंसर्न, और वो ये है कि ओवर द इयर्स यूपीएससी हैज बिकम कंप्लीटली एनालिटिकल. और अगर आपके सामने एक इशू, एक टॉपिक आता है, उस इशू और टॉपिक के अंदर आपको गहराई में उतरना पड़ेगा. अगर आप स्टैंडर्ड सोर्सेज तक रह जाएंगे, तो इट इज डिफिकल्ट टू असर्टेन कि आप प्रीलिम्स क्रैक करेंगे. इवन इन मेंस, आंसर राइटिंग अप्रोच हैज चेंज्ड. द रीजन इज, बहुत सारे बच्चे जो हैं अब आंसर राइटिंग को सही तरीके से उठा रहे हैं. सो इट हैज बिकम डिफिकल्ट टू कम्पीट. सो व्हाट आई फील इज, नाउ आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो आप करते हैं, कभी आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं, कभी किसी थिंकर को पढ़ते हैं. फॉर एग्जांपल इन क्लासेस आई कीप ऑन कंपेयरिंग गांधी विद नेहरू, विद कार्ल मार्क्स, विद इवन इन द फ्यूचर राहुल, इन आवर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स, हम औरबिंदो घोष या रविंद्रनाथ टैगोर, उनकी अप्रोच स्टेट के बारे में क्या थी, उसकी भी चर्चा करेंगे इन आवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो कोर्स है उसमें.
सो द अप्रोच इज चेंजिंग, प्रीलिम्स के अंदर भी मेंस के अंदर भी। जो चीज नहीं बदल रही है वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू नहीं बदल रहा है, वो अभी भी वैसा ही है, उसकी अप्रोच भी वैसी ही है। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट प्रीलिम्स, जो आपकी प्राथमिक परीक्षा है, जो आपकी मुख्य परीक्षा है, उन दोनों के अंदर एनालिटिकल अप्रोच, इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट। तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर मैं बेयर मिनिमम एनसीईआरटी पढ़ जाऊंगा, कभी एक दौर था कि अगर आप बेयर मिनिमम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ जाते हैं तो बात बन जाएगी। नाउ एवरी सिंगल ईयर, इवन फॉर सर्टेन टीचर्स, इट बिकम्स डिफिकल्ट। उनको देखना पड़ता है कि यूपीएससी ने ये सवाल पूछा तो पूछा भैया कहाँ से। कई बार हिस्ट्री में ऐसे सवाल पूछ लेते हैं, एंड वो कभी कभी क्या होता है, इवन फॉर टीचर्स वो नजर के सामने होता है, हम वो फैक्ट बोल भी देते हैं, लेकिन हमारी नजर से भी वो हट जाए, यूपीएससी ऐसी चीजें उठा लेते हैं। तो इसीलिए पैटर्न में बदलाव तो आया है। लेकिन व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जितना भी बदलाव आए, एक चीज याद रखिएगा आर्यन, अगर आपकी अप्रोच ये है ना कि हाथी के पांव में सबका पांव, एज इन इफ यू आर कवरिंग दिस मच एंड यू नो कि यूपीएससी इतना ही पूछती है, तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। तो आपको हाथी का पांव उठाना है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है? Yes. एनीबडी एल्स? Sir, I want to ask you a question. What was जी your mantra of studying motivated while studying? ओके राहुल, द What ओनली strategy did you use while you were preparing? the only strategy that I had was एक ना इंग्लिश प्रोवर्ब है, ईट दैट फ्रॉग। पहली चीज, ईट दैट फ्रॉग इज लाइक अ बुक, जिसमें ना एक स्टोरी है। स्टोरी इज ऑफ वन फैमिली गेटिंग मैरिड इनटू अनदर फैमिली। दो परिवारों में शादी हो रही है, साउथ ऑफ इंडिया की है जैसे मान लीजिए स्टोरी। और वहां पे ना वो लड़के वालों को, बारातियों को ये बोल दिया जाता है कि ये सामने हाथी पड़ा है, और इस हाथी को अगर आप खा जाएंगे, अगर खा लेंगे, डू नॉट टेक दिस लिटरली, इसको लिटरली मत लीजिएगा, किसी लॉ के खिलाफ नहीं जाना है, बट इसको समझिए कि अगर आप ये हाथी को खा लेंगे तो हम आपको लड़की लेके जाने देंगे, शादी के बाद तब लेके जाने देंगे। नाउ उन्होंने ये बात बोली तो उन्होंने वो परेशान हो गए लड़के वाले कि यार अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। सेम स्ट्रैटेजी, सेम अप्रोच। जो आप पूछ रहे हैं सवाल, उसी का जवाब इसी में से निकला था मेरे लिए भी। सो व्हाट आई रियलाइज कि रियली है ना, ये लाइफ की ये जो स्टोरी थी ये बहुत रेलिवेंट थी। तो उसमें से सबने किसी एक बुजुर्ग को ढूंढा, भाई जो सबसे ज्यादा समझदार है उसको बुलाया जाए। तो आप लोगों में जैसे मैं बार बार बोलता रहता हूँ, मैं बुजुर्ग हो गया, तो वैसे ही उसमें से उन सब ने भी, अपने लड़के वालों ने सबने एक बुजुर्ग को ढूंढा। उस बुजुर्ग ने कहा कि हाँ ये किया जा सकता है अगर हर कोई थोड़ा थोड़ा कर लेता। तो मेरे पास इतने सारे लोग तो नहीं थे काम करने को, आई हैड ओनली माई सेल्फ। सो वॉट आई डिड वॉज, स्लोली एंड स्टेडली, वन बिट वन पीस एट अ टाइम, मैंने कोर्स को, सिलेबस को कंप्लीट करना शुरू किया। वन बिट एट अ टाइम, वन पीस एट अ टाइम। एंड देन आई यूज टू वॉच वेरी रेलिवेंट मूवीज। तो मेरा सिस्टम ऐसा था कि मैं मूवीज को ऐसे थिएटर्स वगैरह में जनरली नहीं देखता था। जैसे भी मैं मूवीज देखता था, मैं जल्दी जल्दी देखता था, और मैं फोकस करता था इंपॉर्टेंट पार्ट्स के ऊपर। So for example, there was this movie called Red Tails. Red Tails के अंदर ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन का एक जत्था है जो कि एयरफोर्स के लिए काम करता है ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर, एंड उनकी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है। देन देयर इज दिस मूवी कॉल्ड अनब्रोकन, लाइक दिस वाज बेस्ड ऑन द रियल लाइफ ऑफ एन ओलंपियन, लुइस एम्परिनी उनका नाम था। 2000 आई थिंक 2014 के अंदर उनका देहांत हुआ है। सो ही वाज आल्सो अ प्रिजनर ऑफ वॉर इन जापान। ओलंपिक्स के बाद वॉर में गए और वहां पर प्रिजनर ऑफ वॉर हो गए जापान के अंदर। तो वो उनका सर्वाइवल की स्टोरी। ऑल दीज स्टोरीज दे यूज्ड टू मोटिवेट मी कि यार ये लोग इतनी एडवर्स सर्कमस्टांसेस के अंदर, ऐसा नहीं है कि इनके कुछ खास शरीर पे नाक अलग से लगा हुआ है, कान अलग लगा हुआ है, मेरे जैसे ही इंसान है। और नॉर्मल इंडिविजुअल्स जो शुरुआत से ही डर रहे हैं, शुरुआत से डर लगता है कि नई चीज उठाने में महसूस होता है। लेकिन these people, they were faced by such extraordinary circumstances. Then I realized कि लाइफ में जब extraordinary circumstances आएंगे, उस समय अगर मैं डटा रहूंगा, खड़ा रहूंगा, तो for me studying the entire day and night was like an extraordinary circumstance. वो पूरा दिन पूरी रात पढ़ने के बाद जो संतुष्टि महसूस होती थी,
वो अतुलनीय है, अविश्वसनीय है। एक और एक और बात आपके साथ शेयर करूंगा। एक मूवी आई थी ब्रिज ऑफ स्पाइस करके, टॉम हैंक्स की मूवी है। वंडरफुल मूवी, आपको देखने की जरूरत नहीं। उसकी एक इम्पॉर्टेंट सीन से आपको रूबरू कराता हूँ। बात हुई ऐसे कि किसी एक उस स्पाई के, जिस स्पाई को रिप्रेजेंट कर रहे थे टॉम हैंक्स, वन इंडिविजुअल इज टेलिंग दिस मैन अ स्टोरी कि मुझे आपको जब देखकर उस व्यक्ति की याद आती है। इस व्यक्ति की, उसके फादर थे, जो बंदा बात कर रहा है, जो व्यक्ति बात कर रहा है, उसके फादर थे। वो कहते थे कि बेटा देख उस आदमी को, लुक एट दिस मैन। ये बच्चा, उस समय बेटा था, बच्चा था, तो ये देखता था उस आदमी को, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक टू मी, इफ यू लुक एट मी, माई फेस इज अ वेरी जेनेरिक फेस। ऐसा कोई खास फेस नहीं है, ऐसा नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि हाँ, जिसको कहते हैं ना सरकारी दफ्तर वाला फेस भी नहीं, लाइक कॉमन मैन का फेस। लाइक ऐसा नहीं है कि टॉम क्रूज से शक्ल मिलती है, राइट, और रॉक ड्वेन जॉनसन से शक्ल मिलती है। उसको मूछे नहीं बेचारे को, तो सिर पे भी बाल नहीं है। नाउ, अब ये बच्चे को ये बार बार इसके पिता बोल रहे हैं, लुक एट दिस मैन, एंड ही डज नॉट फाइंड एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। देन वन फाइन डे, इनके विलेज में ना फौजी आ जाते हैं। वो फौजी बेसिकली यहाँ से लोगों को कैप्चर करके लेके जाना चाहते हैं, सरकारी ऑर्डर्स। वो आते हैं, महिलाओं को, बच्चों को, सबको बराबर पीट रहे हैं। वो इस आदमी को भी पीटते हैं, जिस आदमी को ये बार बार कहता है कि देख इसको। वो आदमी को पीटते हैं, वो आदमी गिर जाता है, फिर खड़ा हो जाता है, फिर पीटते हैं, फिर गिर जाता है, फिर खड़ा हो जाता है। वो पिट पिट कर इतना नहीं थका जितना पीटने वाले, मारने वाले थक गए, और एट द एंड वो मारना छोड़कर वो कहते हैं कि ये पागल है, इसको छोड़ दो, और वो चले जाते हैं। उस दिन से उस व्यक्ति का नाम जो पड़ता है उस लैंग्वेज के अंदर, रशियन लैंग्वेज के अंदर, उसको बोला जाता है कि दिस गाय इज स्टोइकीय मुजिक, द स्टैंडिंग मैन। सो बेसिकली, अगर आप लाइफ जितना मर्जी आपको परेशानी दे दे, जितनी मर्जी परेशानी दे दे, अगर आप उन सभी परेशानियों को डट कर सामना करते हैं, तो देर विल बी अ पॉइंट इन टाइम जहां पर आप सक्सेसफुल होंगे और वो परेशानियां हार जाएंगी। दिस यूज टू बी माई मोटिवेशनल थॉट, दिस यूज टू मोटिवेट मी। सो आई वॉन्टेड टू बी दैट मैन। देर वॉज अ टाइम जहां पर मैं स्टेटस वगैरह भी रखता था, तो जैसे व्हाट्सएप वगैरह पे स्टेटस रखा है, तो स्टुइकीय मुजिक लिखा हुआ है उस लैंग्वेज के अंदर। फिर कभी लिख लिया तो एक अभी रिसेंटली जो मेरा स्टेटस चल रहा है, दैट इज फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। लक आपका तभी साथ देगा जब आप खुद ब्रेव हैं, यू आर विलिंग टू टेक एक्शन। एनी अदर क्वेश्चंस? Yes, sir. जी जी जी, वैभवी जी। Sir, do you believe that following a proper schedule and maintaining discipline helps in preparing for a exam? देखिए, ऐसा है कि आई फील कि जो आपका शेड्यूलिंग का प्रोसेस है ना, वो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करने में मदद करता है। फॉर एग्जांपल, हैविंग क्लासेस थ्रू आउट द डे, फॉर एग्जांपल रीडिंग आफ्टर दोस क्लासेस। मेरा ये मानना है कि रूल्स आर नॉट मेंट टू बी ब्रोकन। आप जब अपने आप को डिसिप्लिन देते हैं, अपने आप को रूल्स में बांधते हैं ना, तो उससे आपका मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव होता है। नहीं तो क्या है कि आपकी एनर्जीज जो है ना, हेवायर, कभी इधर कभी उधर इस तरफ जाने लगती है। अगर आप खुद को स्ट्रैटेजी देते हैं, खुद को एक एक प्लानर के तहत, एक शेड्यूल के तहत बांध कर चलते हैं ना, डिसिप्लिन के साथ, तो आपकी एनर्जीज हेवायर नहीं जाती, तो दे आर कॉन्कॉर्डेड, वो एक तरफ सटीक तरीके से निशाने पर वार करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अर्जुन से पूछें तो उसे सिर्फ मछली की आंख नजर आ रही है, उसे सिर्फ चिड़िया की आंख नजर आ रही है। तो वो एक कॉन्सर्टेड एक्शन की अप्रोच है। उसका मतलब क्या है कि अगर आप शेड्यूल फॉलो करते हैं, तो आपकी एनर्जीज एक तरफ पॉइंटेड रहेंगी। दैट इज द रीजन। तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट, इनफैक्ट मैं आपको ये भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि लेट नाइट स्टडीज कीजिए। आई वुड सजेस्ट कि आप सुबह 4 बजे, 4:30 बजे उठिए और उस समय का सदुपयोग कीजिए। दैट इज द बेस्ट वे, राइट? चलिए, ठीक है जी। एनीथिंग एल्स? हाँ, sir. Yes, sir. जी, Sir, आनंद। please tell us that what are the few things or strategies uh, that everyone must follow who is preparing for UPSC, like me, Vaibhavi ji.
or like Rahul ji. So who are who are like me 18 years or in graduation or after graduation. So Right. Aryan, the thing is that when you are preparing for civil services, always remember that the approach, आपको लगता है कि चलो फर्स्ट प्रीलिम्स हम निकालते हैं, फिर मेंस आएगा, मेंस निकाल लेंगे, फिर इंटरव्यू आएगा, इंटरव्यू निकाल लेंगे. If you ask me, the correct approach is interview and means collectively prepared together, and जब आप इसकी अच्छे से तैयारी करते हैं, prelims खुद ब खुद होने लगता है. So you should not prepare for prelims first. You should prepare for mains first, mains and interview. My approach, and I was guided by one of the best. He was, the topper of his batch in general studies. He taught me this. He secured a very good rank in interviews as well. He was the topper of his interviews way back in 1982 or 83. He was a retired IPS officer who had grilled me into this field. Now he told me that Sanat, you should prepare in a different way. That is interviews, then mains, and then prelims. So if you do that, you will have time for prelims, you'll have time for mains, you'll have time for interviews. One. Second, you would have covered every single thing that is under the sun. Third, it will not be difficult for you to remember things for prelims. तो prelims में क्या है कि आप ये छोटा फैक्ट ऐसे कवर करते हैं, लेकिन अगर आपको उसके पीछे का कारण पता लग जाए, रीजन पता लग जाए, फॉर एग्जांपल इवन इन इकोनॉमिक्स, if you remember, I think we have covered fiscal policy. So I have told you कि interest और dividends जो है वो revenue account में क्यों आते हैं और capital account में क्यों नहीं आते. The principal amount goes into capital account. If you remember, we have talked about this. The reason when you know, it is easier for you to remember. आपको कारण पता लग जाए तो आप आसानी से याद कर लेते हैं. फैक्ट्स याद करने मुश्किल होता है ना. जब भी बच्चे कहते हैं तो यही बात बोलते हैं, सर डेट्स नहीं याद होती. अगर आप डेट की कहानी याद रख लें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि आर्यन, आपको याद है आपके पिछले बर्थडे पे क्या हुआ था, आपको डेट भी याद होगी, आपको टाइमिंग भी याद होगा, आपको याद होगा कि मैंने इतने लोगों को पार्टी दी थी, उनमें से वापस कितनों ने दिए, कितनों ने नहीं दी, इसका भी ब्यौरा होगा, आपको ये भी बता देंगे कि क्या क्या चीजें ऑर्डर की. सो इफ यू रिमेंबर द स्टोरी, फैक्ट्स उसके बीच में फिट हो जाते. दैट इज व्हाई go for interviews and mains. Why interviews first? Because once you start preparing yourself to become an IAS officer, तो आपके अंदर ना वो आदतें आनी शुरू हो जाती हैं, और जब वो आदतें आती है ना, तो आपको पर्सपेक्टिव पता लगता है कि मुझे किस पर्सपेक्टिव के जरिए, किस पर्सपेक्टिव के तरीके से एक तैयारी को आगे लेकर जाना है. दैट इज राइट. एनीथिंग एल्स, राहुल? सर आपने टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म को ही पढ़ाने के लिए क्यों चुना? Rahul, a very valid question, and I've been talking about it for a while now. The thing is that textbook has multiple, benefits as far as me as a mentor is concerned. If I talk about myself only, मैं students की बात बाद में करूँगा, पहले अपनी बात करता हूँ. There are only a few institutions in this country that have allowed the leverage to the teachers. Teachers को ज़्यादा idea रहता है rather than institutions कि क्या चीज पूछे जाते हैं. And with textbook, my experience has been कि वो मुझे ये चीज allow करते हैं कि सर आप अपना curriculum अपने हिसाब से डिजाइन कीजिए. There is no foundation, nothing like that. So that independence that I get as a mentor, because I know हम यूपीएससी की फील्ड में रातों रात चीजें बदल जाती हैं. सिलेबस भी बदलना है तो आपको पता नहीं चलेगा कि कब सिलेबस बदलना है. So with that level of independence and that level of support from the organization, I have not, I've never found that from any other place, and that is like the best thing, the best possible thing that any mentor, right-minded mentor can get. Apart from that, as far as students are concerned, for you guys, for example, you have that leverage कि आप screenshot ले सकते हैं, आपके पास cloud का space है, you have the doubt section, घंटे के अंदर अंदर doubts clarify हो जाते हैं. You have the approach जहां पर आपको live classes भी मिल रही हैं, tests भी मिल रहे हैं, PDF भी मिल रही है, और उसके साथ साथ आपको study notes अलग से मिल रहे हैं. And then lucky for us, screen sharing का model भी है. So if I want to take up any file that I have created otherwise, तो मुझे I don't need to spend time and create PPT, उसको PPT बना के मैं अलग से दूं. I can share it with you guys on my group, है ना, अपने ग्रुप पे हम शेयर कर लेते हैं.
और आपको वो फाइल मिल जाती है, एंड ओवर एंड अबव वी कैन कवर दैट फाइल इन द क्लासेस. So at any point of time we are not limited by the presentation as such. फिर जिस तरीके से स्टूडेंट्स के लिए टीचर्स, जैसे आपको ध्यान होगा हम क्लास के अंदर राहुल समटाइम्स वी टेक द एंटायर क्लास में डिक्टेशन ही दे रहा हूँ. कभी कभी ऐसा भी हुआ है. कभी कभी ऐसा हुआ है मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की डिक्टेशन दी है. पिछले वीक, लास्ट वीक की एक क्लास थी, हमने सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ही डिक्टेशन दी. इफ यू रिमेम्बर 20 ऑड क्वेश्चंस अगर आपको याद हो, हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल के ऊपर देखे. फिर वी आपने हैव मेंस के डाउट्स क्वेश्चन एंड के स्ट्रेटजी साथ सेशन. आपने सर मेंस के क्वेश्चन के साथ उनका आंसर भी डिक्टेट किया है. बिल्कुल बिल्कुल. नाउ दिस इज समथिंग एज अ स्टूडेंट, टू बी ऑनेस्ट, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ. दिस नेवर हैपेंड विद मी. Very rarely that happens in UPSC that teachers they tend to dictate questions. मैं आपको बताता हूँ, in judicial services I was working with retired IPS only. uh, he is taking classes for judicial services. Now when I was working in judicial services as well, I think Vaibhavi ji, can you mute your audio? I think पीछे से शोर आ रहा है. अभी अभी हट गया, कोई बात नहीं. So when I took up judicial services as well to mentor those students, and luckily for me I have students who are appointed as judicial magistrates in Delhi, Punjab, Haryana, Himachal as well. They have been toppers. I used to take up essays, and with you guys also I will be taking up essays as well. तो आपके साथ भी essays होंगे. मैं क्लास के अंदर पूरा पूरा essay dictate करवाता होता. I took up 60-70 odd classes for these guys and covered 10 to 15 odd topics. हर एक चीज डिक्टेट करना, पर्सपेक्टिव डिक्टेट करना, और उनसे पूछना, उनसे आपके आंसर्स, जैसे हम वी टेक फीडबैक्स, आई टेक योर आंसर्स एज वेल, तो वो भी लेता होता था. यूज्ड टू गो थ्रू दैट एज वेल. दैट हैज रियली हेल्प्ड. दैट इज द रीजन, दैट इज द रीजन, क्योंकि टेक्स्ट बुक ये सारी चीजें अलाउ कर रहा है ना. इट इज नॉट जनरली अलाउड. समटाइम्स पीपल हैड आस्क्ड, मतलब जैसे मुझसे भी पूछा गया, तो आई when I was trying my hand in online coaching, so whenever whatever institution that I had visited, they used to ask me, sir 15 minutes में ये topic explain कर दीजिए. Rahul, imagine that topic of introduction to public administration by Woodrow Wilson, the public administration political science dichotomy. Imagine that. Can we cover that topic in 15 minutes? I think we took somewhere around 2.5 hour classes of 1.5 to 2 hours each. So Even you have that covered is something. all classes for that. Yes. So that is something that really pushed me. Like, I really enjoy working with Textbook, honestly, on this matter, and I perceive that what we are delivering at this moment is like wonderful thing for aspirants. And anybody who's I don't know who's watching this video, who will be watching this video, they should actually go through the demo sessions. They'll realize कि हाँ, जो चीज बोली जा रही है वो सिर्फ मजाक नहीं है, सिर्फ कहने को नहीं. And I think you would agree with this as well. Yes, sir. I think on this platform, here is full democracy to each and every student who is senior in this field or not senior in this field. They can Right. ask questions freely, but in offline class they can't ask. They're feeling too much guilty. They are feeling that someone is hitting him after class. Right. So even I feel that that is like the best possible boon of having online platform. Vaibhavi ji, Aryan, Rahul, any other questions that you have in your mind, you can ask. I think so. Vaibhavi ji? It is the best opportunity for a young one like Aryan. Here he can ask any questions to you directly in Right. comment section. But in Aryan? offline classes, I think he will never Ji. try to asking any question to the Yes. teacher. Ji, Aryan, ji. Yes, sir, I want to share something that, sir, like textbook, sir, textbook is the platform, only the platform I watch, and I other if I compare with other platforms.
सर जी जैसे जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स जो मैंने जितने भी ऑनलाइन अभी चेक किए, तो सर जो टेक्स्ट बुक के टीचर्स एंड स्टाफ, उनका उनके साथ बच्चों के साथ उनका कम्युनिकेट करना, तो सर आई लाइक दैट मोस्ट। सेकंड थिंग आई लाइक द सर, जैसे सर आप पढ़ाते हैं, तो सर आफ्टर एवरी क्लास देयर विल बी some questions, MCQs we have to practice. राइट And after every class we have given the mains question to try. Sir, I like that the most. इनफैक्ट आई हैव बीन ट्राइंग टू मुझे भी बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं। इनफैक्ट देयर आर सो मेनी बैचेस रनिंग एट टेक्स्ट बुक राइट नाउ। 2022 का बैच है, 2023 का बैच है, एक इंग्लिश मीडियम प्योर इंग्लिश मीडियम बैच भी है। सो देयर आर 3 odd courses which are running for UPSC। then public administration we are about to offer another course, you know। so in all these courses I've asked students, मैं इनफैक्ट हर एक ऑलमोस्ट हर एक क्लास के अंदर randomly, as and when possible, I give out questions, main specific, and students they give me answers, and the answers are uploaded and they are marked, they are checked by experts or directly by me, right? If the question is given directly by me, I am the one who is the first person who is viewing that question, and when I check the questions, I mark it as if anybody would have marked it in UPSC mains examination. So you'll get that approach कि हाँ चलो ये चीज सही है। इवन इफ स्टार्टिंग में आपको मार्क्स कम आते हैं, दैट विल बी लाइक अ मोटिवेशन कि हाँ मुझे इससे बेहतर करना है, राइट? सो दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू, राइट? वैभवी जी, एनी क्वेश्चंस दैट यू वांट टू आस्क? हाँ सर। जी सर मुझे आंसर राइटिंग के रिलेटेड डाउट है। जी जी। सर मतलब यूपीएससी में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब हम्म, समझ नहीं आते कभी कभी कि मतलब क्या पूछा है। तो अगर कभी समझ भी आए तो इधर मतलब ऐसा कंटेंट भी नहीं होता कि इधर क्या लिखे। राइट। बहुत सारे डाउट्स होते हैं। हाँ मतलब क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग नहीं होता कभी कभी, कभी कभी कंटेंट नहीं होता है। ओके। तो ऐसा लगता है कि सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन आया है, ऐसे लगता है। नहीं, देखिए ऐसा है, यूपीएससी कभी भी सिलेबस से बाहर सवाल नहीं पूछती है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि कभी कभी क्या होता है कि देर आर क्वेश्चंस विच रिक्वायर डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, जो शायद कुछ एक लेवल ऑफ सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जैसे पता लगता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, से इकोनॉमिक्स की ही बात करते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर अगर मैं आपसे सिंपल सवाल ये पूछ लूं कि व्हाट एल्स इंडियन इकोनॉमी टुडे, कि आज भारत की अर्थव्यवस्था को परेशानी क्या है, किस वजह से हम इकोनॉमिक एक स्लो डाउन या कह लीजिए हिंदू ग्रोथ रेट जैसी चीज के थ्रू हम जूझ रहे हैं, व्हाट इज द रीजन? नाउ यू हैव कवर्ड फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, आपको मनी सप्लाई का पता है, आपको काउंटर साइक्लिकल साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी का पता है, इकोनॉमिक सर्वे भी अगर आपने पढ़ लिया, इवन देन यू वुड हैव टू गो थ्रू से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, आपको कैपिटल मार्केट का आइडिया होना होगा, आपको एग्रीकल्चर का आइडिया होना होगा, आपको कई चीजों का आइडिया होना होगा, तब जाकर आप एक बैलेंस्ड आंसर लिख सकेंगे। एंड नॉट जस्ट दैट, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि क्या कोई पॉलिटिकल सिचुएशन है जिसकी वजह से इकोनॉमी बेहतर नहीं हो पा रही। देयर इज, फॉर एग्जांपल इंडिया चाइना के रिलेशन जो है वो बेहतर नहीं है, इस वजह से चाइना से जो भी सामान माल आ रहा था वो रुक गया, जिसकी वजह से उन सभी चीजों की कीमतें बढ़ गई, जिसकी वजह से जिन जिन सेक्टर्स में वो चीजें जाती थी वहां पर एक कह लीजिए स्टैग्नेशन आ गई। तो वी आर लुकिंग फॉर डिफरेंट एवेन्यूज, हम दूसरे देशों की तरफ देख रहे हैं, बट कहीं से सही तरीके का रास्ता नहीं निकल पा रहा है। तो इकोनॉमी में कुछ स्लगिशनेस इस वजह से भी आ रही। तो ये चीजें तब पता चलती हैं जब आप फॉरवर्ड अप्रोच के साथ सारी चीजें कवर करते हैं। जब आप एक बार सारा से नॉट द एंटायर सिलेबस से समवेयर अराउंड 60-65% सिलेबस कर जाएंगे ना, तो आपको पकड़ आ जाएगी। एंड आफ्टर दैट इफ यू स्टार्ट राइटिंग, तो वो बहुत ईजी होगा, लाइक वो इजीली आपको फ्लो में आना शुरू हो जाए। इट टेक्स टाइम, लेकिन इसमें एक चीज का आपने ख्याल रखना है, और वो क्या है कि आप इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन की अप्रोच को ना छोड़ें, राइट? तो आपको हर एक चीज के अंदर कीवर्ड्स ढूंढने बहुत जरूरी है। एंड डोंट वरी, वी विल टॉक अबाउट दिस इन आवर लेक्चर सीरीज में। आप एक बार दोबारा से भी ये डाउट पूछेंगे तो मैं आपको इसी तरीके से और भी चीजें बता दूंगा। एनीथिंग एल्स गाइस? Yes, sir. जी जी, आ रहे हैं। Sir, a question that what has been your most beautiful moment in teaching journey?
There have been multiple ones, आर्यन, बहुत ही बहुत सारे ऐसे किस्से हुए हैं when I've had students sharing their messages sometimes, and टेक्स्ट बुक पे जैसे अगर मैं बोलूँ तो वो जो रेटिंग्स का सिस्टम है, तो रेटिंग्स में जब बच्चे कमेंट्स में लिख कर भेजते हैं जो वो क्लास में जनरली नहीं लिखते हैं, और वो कमेंट्स जब मिलते हैं पढ़ने को मिलते हैं, अभी भी जैसे रेटिंग जो है, मुझे पता है कि रेटिंग आ जाती है 5:31 पर, तो वो रेटिंग्स आई होंगी, तो अब मैं जब पढ़ूंगा तो वो दैट फीलिंग, दैट स्टूडेंट्स मुझे किस तरीके से परसीव कर रहे हैं, एंड आई एम आई एम डूइंग दैट, आई एम डिलीवरिंग टू दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैं सिर पर लेकर खुद से चला 10 साल पहले, और जब मैं वो चीज सेटिस्फाई कर देता हूँ, तो वो मुझे, इट्स फॉर मी, इट्स लाइक डेली बेसिस पर वो बेस्ट मोमेंट रह जाता है, वो डेली बेसिस का बेस्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आस्क मी द बेस्ट मोमेंट in the recent past is when my students they achieve success. I've had so many students qualifying for mains and then appearing in the interviews, cracking the interviews. I've had so many people entering into state civil services. I've tried to give direction to somewhere around पिछले 10 साल में अगर मैं बोलूँ तो करीब करीब 4 से 5 हज़ार बच्चों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली मोटिवेशन, गाइड, मेंटर एंड प्रॉपर कोचिंग दी, एंड आउट ऑफ दोज इंडिविजुअल्स अगर कोई फील्ड से निकल कर अपनी फील्ड में भी एंटर कर रहा है, दे आर एक्सेलिंग एट वॉट एवर दे आर डूइंग. So I've had so many lawyers as students, and sometimes I'll share one beautiful moment. There was a student of mine. He was older than me. I'll call him a student only. चाहे उम्र में बड़ा है तो पर रिश्ता तो वही रहेगा. So he was a junior of my father's when my father was alive. He was he was practicing law. So in courts, he was a junior of my father's. They knew through each other through some lawyer. So he came to my father's office, and it is my in home only. This is the office that is used to be my father's office. So he came to this room and he said that we are taking classes from this individual. वो हमें ये पढ़ा रहे हैं, वो हमें ये पढ़ा रहे हैं. कहते सनत सर हमें ये पढ़ा रहे हैं, सनत सर ये कराते हैं. ऐसे he talks about interviews, and my father was like, the person that you're talking about is my son. तो वो 35 odd years of age वाले लोग वो ये कहते हैं, अच्छा सनत सर आपके आपके लड़के हैं. तो they were like shocked, and my father was filled with pride. For any individual, that is the best moment. As a teacher, that was my best moment, right? So उसको टॉप करना तो सिर्फ और सिर्फ तब होगा अगर इन द नेक्स्ट बैच जब एग्जाम होगा 2022 के अंदर, आप में से रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 निकल कर आएंगे ना, तो उस चीज को सिर्फ वही टॉप कर सकता है और कुछ नहीं, राइट? सो दैट इज द बेस्ट मोमेंट. ठीक है जी. Yes, I will do my best to feel you. I expect nothing but the best from you, Rahul. Aryan and Vaibhavi ji, आप सभी से I have best of the possibilities. I wish you all the best, guys. This initiative was a wonderful one. I got emotional. I think you got emotional as well in between, and this is something that we really dread to do. हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के साथ इस तरीके की इंटरेक्शन बढ़ती रहे, and we will keep on bringing these initiatives. Now beyond the classroom initiative के लिए टेक्स्ट बुक का हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं. आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया for coming to this session. Thank you Vaibhavi ji, Aryan, Rahul. Thank you so much, guys. You gave your Thank you, precious sir. time to us. Thank you so much. Thank you, sir. Everybody else who is listening Thank to you, this sir. session, आप सभी को best of luck for your exams, and make sure that you keep following Textbook for more such updates. This is me, Sanadath Bhardwaj, signing off. Thank you. Bye bye. Take care and God Thank you. bless.